Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371-7106 and 2371-7117. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम आज भी ताजा आर्थिक समाचार लेकर आए हैं। आज सोमवार है और आज हम कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ में। Domestic stocks fall more than 2.5% amid negative global cues. Sensex plunges below 57,500 level. Nifty tumbles below 17,200 points. Gold prices climb above 48,500 rupees per 10 grams mark for February contracts. And Brent crude oil rises above $88 per barrel. वैश्विक बाजार में नकारात्मक रुख के चलते घरेलू शेयर बाजार में 2.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 57,500 के स्तर के नीचे पहुंचा। निफ्टी भी 17,200 अंक के नीचे आया। फरवरी अनुबंध वाला सोना बढ़त के साथ 48,500 रुपए से अधिक प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $88 प्रति बैरल से ऊपर। और आज कार्यक्रम में भाग लेने हमारे साथ में हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल जी। यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2.5% से अधिक की गिरावट हुई। सेंसेक्स आज 57,500 और निफ्टी 17,200 के स्तर के नीचे बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,546 अंक यानी 2.62% घटकर 57,416 पर आ गया। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 468 अंक यानी 2.66% कम होकर 17,149 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 3.82% लुढ़क गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 4.43% की गिरावट आई। At the stock markets, the Sensex and the Nifty today tumbled more than 2.5% each. The stocks declined amid negative cues from the global equity markets. The Sensex closed below 57,500 mark, while the Nifty ended below 17,200 level. The BSE Sensex plunged 1,546 points or 2.6% to finish at 57,416 and the NSE Nifty lost 468 points or 2.7% to settle at 17,149. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices underperformed the Sensex. The mid-cap tumbled 3.8% and the small-cap index declined 4.4%. In the Sensex pack, shares of all 30 companies fell. Tata Steel was the top loser as it tumbled 6%, followed by Bajaj Finance, which also lost around 6%. Wipro plunged 5.4%. Tech Mahindra ended 5.1% down, and Titan fell 5%. Sectorally, all indices ended lower. Realty sector index lost the most as it fell 5.9%. Metal tumbled 5%. Basic materials plunged 4.5%. Consumer durables declined 4.1%. Consumer discretionary goods and services index ended 4% lower. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 511 companies gained while 3,072 fell. Shares of 123 companies remained unchanged. So we have a caller named Debashish Datta from Kolkata. Debashish, please ask your question. Good evening. Thanks for accepting my call.
My question is that some days back, our Honorable Prime Minister announced some bond whereby ordinary people can directly, without going in for this, what do you call that, account in which we have to do an account for doing trade in shares. We can directly invest in government securities without opening a demat account. Yes, demat account. Yeah. Well, all government securities are now open to retail investors, and they can invest through the demat account which is there. There are presently no government securities which are being offered not through a demat account. और जितेंद्र कुमार है मध्य प्रदेश से, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं. हेलो जी नमस्ते. जी नमस्ते, आपका प्रश्न पूछिए. यामिनी मैम को भी नमस्ते. जी नमस्ते मैम. फंडामेंटल और जो टेक्निकल एनालिसिस है इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए. जी, फंडामेंटल एनालिसिस आपको स्टॉक पिकअप करने की अपॉर्चुनिटी देता है. वो बताता है इकोनॉमी कैसी चल रही है, इंडस्ट्री कैसी है और वो कंपनी स्पेसिफिक कैसे है. इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ है उसके बारे में स्टडी किया जाता है. ऐसे ही इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ है और वो किस टाइप की आगे ग्रोथ देख सकती है उसके बारे में. और कंपनी में जो उसकी 5 रेशियोज हैं या उसके बेसिक मैनेजमेंट है या बिजनेस कोर इश्यूज हैं वो बताता है. टेक्निकल स्टॉकिस्ट अप्रोच होती है जिसके अंदर जो स्टॉक प्राइसेस हैं उनको चार्ट्स के द्वारा पढ़ा जाता है और उनकी मूवमेंट को स्टडी करके बाय और सेल पॉइंट्स देखे जाते हैं. Atanu Saha is calling from Kolkata. Atanu ji, please ask your question. Calling from Kolkata. Good evening, Atanu from Kolkata. My first question is why a account treat as a dormant account, and my second is is there any option to get refund money due to the death of the account holder or matter of COVID period, on the matter of COVID period? Thank you. A dormant account is usually an account where there is no activity observed, especially when there is no trading activity or no other submissions or let's say sale takes place on that account. The accounts in which are dormant, usually the person has to first fulfill the KYC requirements to make it active and then can possibly close the account and seek the refunds. मुंबई से हमारे एक श्रोता है दिगंबर. हेलो दिगंबर जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि शेयर मार्केट में हम लोग पर्सनली डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? जी. और दूसरा ये है कि अभी जो ये शेयर मार्केट की जो गिरावट है कुछ दिनों से एकदम गिर के मतलब गिरावट हो रही है, तो ये कब तक ऐसी चलेगी? उसके लिए कुछ टाइम लिमिट कुछ है क्या कि क्या है मतलब? जी. और क्यों ऐसा हो रहा है? जी देखिए, आप शेयर मार्केट में अपना इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं. डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा आपको. वो किसी बैंक में अकाउंट खोलने के साथ आपको मिल सकता है या फिर आप एक ब्रोकर को अप्रोच करिए, वो आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल देंगे. जहां तक शेयर मार्केट के डाउनफॉल की बात है, अगर आप देखें तो काफी अनिश्चितता है मार्केट के अंदर ओमिक्रॉन को लेकर के. और जैसे आज भी न्यूज आई है कि ओमिक्रॉन कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हो गया है, उसकी वजह से खासा असर नजर आया है स्टॉक मार्केट्स के ऊपर. जो बाकी कारण है अगर आप देखें तो उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है यूएस फेडरल रिजर्व का संकेत देना कि वो आगे चल करके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए जो मीटिंग है वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को कल और परसों में होनी है, जो आगे निश्चय करेगी कि किस तरफ इंटरेस्ट रेट्स जाएंगे. मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉजिटिव आता है तो स्टॉक मार्केट्स अपने आप स्ट्रेंथ पिकअप करेंगी. बजट से भी उम्मीद की जा रही है क्योंकि वहां पे फिस्कल सपोर्ट मिलेगा तो मार्केट्स बढ़ सकती हैं. And now it's time for a commercial break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ. सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ. ओ तो ये बात है. हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया. बड़े भैया. छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी.
स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे कमजोर होकर 74.57 प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.28% की बढ़त से 95.91 पर था। और एशियाई बाजारों की बात करें तो एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख था। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.5% के नुकसान में रहा और हांगकांग के हैंगसेंग में 1.2% की कमी आई। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम सूचकांक 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक करीब अपने स्तर पर ही बना रहा। जापान के निक्केई 225 ने 0.2% की बढ़त दर्ज की। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी गिरावट का रुख था। लंदन का फुट्सी 1.2% के नुकसान पर था। फ्रांस के कैक और जर्मनी के डेक्स में 1.8% की गिरावट आई। We have Gaurav on phone line from Ghaziabad. Gaurav, ask your question, please. Good evening, Market Mantra team. Good evening, Madam Yamini. Good evening. Madam, I am a small retail investor, and what would you advise to an investor on such falls? Can we keep investing on smaller these falls? Is it an opportunity for us to invest in a smaller chunks? And secondly, which sector would you think would rebound faster once things get streamlined or all these things, Omicron stress bypasses? Will it be banking, technical, or any other specific sector? Thank you. When we talk about the retail investor, it is always better during this time to be more cautious and only make very qualitative investments which have long-term growth to be shown. Also, the sectors which can possibly show a good opportunity is FMCG, your IT and pharma. They are likely to be positive green sectors. जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ में। हेलो जितेंद्र, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, हेलो। हाँ, हमारा प्रश्न है कि जैसे अभी मार्केट 5-6 दिन से काफी डाउन हुआ है, तो PSU सेक्टर में, जैसे फाइनेंस सेक्टर में, पावर सेक्टर में क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? ओनली PSU। और IPO जो आने वाला है उसमें क्या मतलब करना चाहिए कि नहीं? जी देखिए, निवेश के लिए जरूरी है कि जो बिजनेस है जिसमें आप निवेश करें उसकी एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान हो और जो उसकी मैनेजमेंट हो वो काफी एक्सपीरियंस्ड हो उस ग्रोथ को आगे परस्यू करने में। इंडस्ट्री की ग्रोथ देखते हुए, बिजनेस का कोर सेटअप देखते हुए निवेश करना चाहिए और उस कंपनी की क्या बैकिंग है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिजर्व्स एंड सरप्लसेस एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, उसको देख करके अगर आप निवेश करेंगे तो कोई भी सही स्पेसिफिक स्टॉक्स में निवेश करना सही रहेगा। And in more news, Prime Minister Narendra Modi said programs and initiatives like Startup India, Stand Up India, Digital India and Make in India are all led by young people and will take the country to newer heights. He said, all feel proud when the youth of country are innovating and taking the nation forward. Interacting with the recipients of the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, Mr. Modi said, this award also comes with a huge responsibility. Prime Minister urged all young people to come forward and make vocal for local a success. मुंबई से गोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मार्केट में टीम को नमस्कार जी। सर, मेरे सवाल 2 हैं, तो थोड़े सवाल बड़े हैं, लेकिन आज के जैसे मार्केट कंडीशन हो हिसाब से सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि मैं रिटेल इन्वेस्टर है। पूछिए। लगभग तो मैं 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो अभी पीछे जो 10 दिन से मार्केट गिरी तो मेरे उसमें कम से कम 1.5 लाख रुपया तो लॉस चल रहा है। फिलहाल तो मैंने अभी आज आधा स्टॉक निकाल दिया, आधा स्टॉक अभी पड़ा है। वो तो काम भरोसे है कि आगे कल भी अगर ऐसे हुआ तो वो भी निकाल दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब ये कोविड 2020 में कोविड है तो सर गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का मार्केट ये अपना इसका ये निकाला था, 20 लाख करोड़ का। उसमें कई सेक्टर को पुश किया गया, लेकिन कुछ सेक्टर वहीं के वहीं है या उससे और नीचे चले गए। तो उन सेक्टर क्यों नहीं पुश किया गया? जैसे कि सरकारी बैंक, उनकी हालत तो मर्जर के बाद जिसको मर्जर किया उसकी भी हालत खस्ता है और जिसके साथ मर्जर किया वो उसकी हालत और खस्ता है।
तो उसमें आदमी तो सरकारी बैंकों को क्यों नहीं पुश किया गया जब 20 लाख करोड़ का ये दिया गया सरकारी बैंक? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो कई सेक्टर है जो जब 2020 के कोविड के बाद इस हद तक इतना तेज चले आगे कि 1,000 टाइम ऊपर चले गए। किस देश से चले गए? जब उसको गिराना है तो उसको गिराया जाए ना, जो मरे हुए उनको और गिरा के देश के पूरे मार्केट की सत्यानाश कर देते हैं। तो मार्केट का कोई जी आपका आशय समझ गए हैं हम। आप जी देखिए, जब कोविड पेंडेमिक शुरू हुआ था, उसके बाद सरकार ने जो फिस्कल स्टिमुलस दिया था वो 13% जीडीपी के आसपास था और उसमें कोशिश की गई थी कि इकोनॉमी को रिलीफ दिया जाए, खासतौर पे एमएसएमईज, फार्मर्स और महिलाओं को। कोशिश ये भी की गई थी जो वनरेबल ग्रुप्स हैं उन तक सहायता पहुंच सके। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर या इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं किया गया था, पर ज्यादातर लोगों तक लिक्विडिटी पहुंचे, लोन की सुविधा पहुंचे और एग्रीकल्चर भी सेक्टर में जैसे इन्फ्यूजन हो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का, वो देखा गया था। पीएसयू बैंक्स में ओवरऑल कैपिटलाइजेशन किया गया था, पहले भी किया गया है और अभी भी किया गया है, और डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है ताकि पीएसयू बैंक्स की स्थिति को ज्यादा सुधारा जा सके। मर्जर्स पहले ही हो चुके हैं जो एसबीआई के द्वारा हुआ था और उसके तहत भी पीएसयू बैंक्स की स्थिति को संभालने की कोशिश की गई थी। जहां तक स्टॉक मार्केट्स में वैल्यूएशन की बात है, वो देखा जाए तो जैसे जैसे किसी भी चीज की डिमांड पिकअप होती है वहां वहां हमें वैल्यूएशंस हायर नजर आती हैं। ज्यादातर लोगों ने यही माना है कि फंडामेंटल से कहीं बियॉन्ड जाकर के ये वैल्यूएशंस नजर आ रही हैं और जो सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादातर कॉशियस रहने के लिए कहा गया था। अभी भी जो गिरावट है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, तो उसके लिए कॉशियस अप्रोच अपनाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। Ratnakar is the next caller from Mumbai. Hello. Ratnakar? Yep. Hello, good evening, sir. Good evening. हाँ, मेरा तो है ये जो मार्केट की गिरावट ये कोरोना ओमिक्रॉन बढ़ने की वजह से हो रही है क्या बजट की वजह से हो रही है ये है? और आने वाला बजट कैसा रहेगा आम आदमी के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए कैसा रहेगा? जी अमनी जी। जी देखिए, जो मार्केट की गिरावट अगर देखी जाए तो माना जा रहा है उसके ऊपर काफी हद तक कोरोना का असर रहा है, ओमिक्रॉन खास तौर पे, क्योंकि वो एक कम्युनिटी स्प्रेड पे आ गया है। ये भी माना जाए तो रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया गया है कुछ सिटीज में, पर बाकी जगहों पर भी स्ट्रिक्ट किया गया है, उसका भी असर नजर आ रहा है। ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट्स थी वो भी डाउन थी क्योंकि कोरोना का असर या ओमिक्रॉन का असर या उसके वेरिएंट्स का असर नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन ने काफी हद तक फायदा पहुंचाया है और वैक्सीनेशन अब बूस्टर डोज की तरह भी लगाई जा रही है फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ को, प्लस चिल्ड्रन के भी आगे एक्सटेंड की गई है ताकि इकोनॉमिक रिकवरीज में एक पॉजिटिव ट्रेंड रहे। बजट को लेकर के काफी लोगों में उत्साह है और उम्मीद है और यही माना जा रहा है कि बजट ओवरऑल जो इकोनॉमिक रिकवरीज हैं उसको सपोर्ट करेगा। और सुदीप है आंध्र प्रदेश से। हेलो। Yeah, very good evening, ask sir. your question. Yeah, thanks for giving me an opportunity. For you, ma'am, Yamini, ma'am, I'm following you regularly in Market Mantra. I was quite impressed the way you are sharing the knowledge, ma'am. Coming to the question, the coming days there is a US Fed policy now, ma'am. How it actually affects the Indian markets and how the Indian markets react for the policy. That is my primary question. And tell me something about, ma'am, bond yields. What is bond yields and how it affects the markets? And what actually our Indian markets react when the inflation goes up? Sorry, not about inflation. When the interest rates of the US Fed rates goes up, and what happened to the markets if they come down? In conclusion, ma'am, that's it. Overall, U.S. federal policy determines as to how much, what kind of a stance they are likely to keep with the economy, whether they are likely to continue with their accommodative stance or they are likely to tighten up. Given the economic recoveries in the U.S., the Federal Reserve has now been slowly concerned about the inflation, and because of which the Federal Reserve has decided to increase the interest rates, also to taper the bond buying process
to reduce the liquidity in the market, which is likely to reduce the capital in the market. Automatically, if interest rates rise over there, the FIIs are likely to be interested in the US markets as against other markets if the other markets do not pursue or follow a similar increase in the interest rates. So again, portfolio diversification will change for the FIIs in terms of their movements from the US markets to the emerging markets, or from the emerging markets to the US markets, depending upon what is the interest rate differentials that exist in these markets. As far as bond yields are concerned, as we say, yield is basically a return on the bond, which is basically a coupon divided by its price. So that is what is the return on the bond. As and when the prices tend to rise, the interest rate on the bond remains the fixed. So the yield comes down, and the moment the prices come down, the yields would automatically rise. So they then decide as to whether people invest higher or there is a higher interest in the bond market or not. When there is a higher interest in the bond market, we usually say people are risk averse to the markets. Again, when interest rates in the other markets rise, they will affect how portfolios will be decided among the international investors. There are a few callers waiting for us, but we are heading into a commercial break. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए। ये बिना विचारे जो करे सो पाँच से पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome to the Market Mantra. After the commercial break, Pankaj is waiting for his call to be taken, and he is from Delhi. Pankaj, ask your question, please. Hi, good evening all. Good evening. मेरा क्वेश्चन ये था कि अगले 5 साल को देखते हुए कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे मैं अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, वेयर आई कैन गेट अ गुड रिटर्न, लाइक EV इज कमिंग अप और मे बी सम ग्रीन एनर्जी थिंग्स। ऐसे में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे मैं अपना पैसा लगा सकता हूं 5 से 10 साल का हॉराइजन देखते हुए? जी, जैसे आपने कहा, रिन्यूएबल एनर्जी इज वन सोर्स जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. कैपिटल गुड्स इज अनदर. Third, you can look for FMCG sector, which is also a good sector. IT and pharma remain to be evergreen sectors for a long term. राजू है चेन्नई से जो अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं. हेलो राजू. हेलो जी, आपका प्रश्न पूछिए. Yeah, I have a question. Like, if an account, a bank account has become dormant, like, and I'm the nominee, and the account holder has expired, my mother. So, what can I do regarding that? Well, if the bank account has become dormant, you will have to give them the details, the death certificate of the person, and close the account, and request that the money be transferred to the nominee of the account or the legal heirs of the account. If there are more than one legal heirs, then a certificate from the court has to be given that you or this particular person, the money has to be distributed to. Gurunath from Thane. Gurunath, ask your question, please. हाँ जी सर, नमस्कार. नमस्कार. ये नहीं मैम को भी नमस्कार. जी नमस्कार. मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, जो अपने जो देश में जो स्टार्टअप खुले चालू है सर, मैडम ये 2014 में 500 थे, अभी 2022 तक 60,000 बोल रहे. तो मैडम हमारे इकोनॉमी को इसका कितना लाभ होने वाला है और GDP बढ़ाने में इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? थैंक यू मैडम. जी देखिए, जब भी कोई स्टार्टअप होता है या कोई नई जो है व्यवस्था शुरू होती है, उसके साथ लोग जुड़ते हैं और उसके साथ जुड़ने के साथ साथ वो जो है आय कमाते हैं और उसी आय से आगे इकोनॉमी में वो सामान खरीदते हैं. तो वो सामान की मांग और जो उनकी आय है वो सिर्फ उनको नहीं, उनकी फैमिलीज को और पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में जो डिमांड है उसको बढ़ाती है, जिससे हमारा जो आगे आने वाला प्रोडक्शन है, क्योंकि उसे सिग्नल मिलेगा कि और डिमांड है, तो वो भी बढ़ेगा और ओवरऑल GDP जिसे हम कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करती है इकोनॉमी, वो भी बढ़ता है. And in more news,
oil prices rose today on worries about supply disruption amid concerns about Russia-Ukraine discord and rising tensions in West Asia, which could make an already tight market even tighter. In intraday trade, Brent crude was trading around $88.20 per barrel, while US crude prices were at $85.30 per barrel. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 260 रुपए की बढ़त में रहा और ये 48,510 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मार्च अनुबंध वाली चांदी 230 रुपए घटकर 64,580 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,840.40 प्रति ऑन्स और चांदी भी बढ़त के साथ दिन के कारोबार में $24.10 प्रति ऑन्स पर थी। दिनेश इज वेटिंग फ्रॉम नोएडा। दिनेश, अपना सवाल पूछ लें। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। मार्केट मंत्रा टीम और यामिनी मैम को नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं तो इसमें मुझे पता है कि 2% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं जानना चाहूंगा क्या वो इंटरेस्ट भी मिलता है प्लस जो है एज ऑन डेट जब हम उसको रिडीम करते हैं तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट मिलती है या केवल इंटरेस्ट ही मिलता है? जी, आपको इंटरेस्ट मिलता है और जब रिडीम करेंगे तो जो गोल्ड की प्राइस होगी उसके ऊपर आपको रिडम्पशन मिलेगा। भोपाल से शंकर है। हेलो हेलो शंकर। यस जी, आपका प्रश्न पूछिए। मैडम, आज ना काफी स्टॉक गिरे, काफी स्टॉक नहीं गिरे, कुछ स्टॉक नहीं गिरे, जैसे 260 कहते हैं नहीं गिरे और करीब 1,500 स्टॉक गिरे। जो नहीं गिरे वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं मैडम? इस तरह के माहौल में क्या ये स्टॉक फ्यूचर के लिए अच्छे हैं या इसमें बाइंग ये ऑलरेडी गिर चुके हैं या क्या क्या वजह हो सकती है, ये बता दीजिए। जी देखिए, मार्केट में बोथ बायर्स और सेलर्स होते हैं। बायर्स वो होते हैं जिन्हें उम्मीद होती है कि आगे जाकर के ये स्टॉक बढ़ेगा और सेलर्स जिन्हें उम्मीद होती है कि इसके बाद वो स्टॉक जो है गिरेगा। तो जो 260 स्टॉक्स नहीं गिरे उनमें ज्यादा बायर्स थे जिनका मानना था कि ये स्टॉक्स आगे जाकर के बढ़ेंगे। यामिनी जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks fall more than 2.5% amid negative global cues. Sensex plunges below 57,500 level. Nifty tumbles below 17,200 points. Gold prices climb above 48,500 rupees per 10 grams mark for February contracts. And Brent crude oil rises above $88 per barrel. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वैश्विक बाजार में नकारात्मक रुख के चलते घरेलू शेयर बाजार में 2.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 57,500 के स्तर के नीचे पहुंचा। निफ्टी भी 17,200 अंक के नीचे आया। फरवरी अनुबंध वाला सोना बढ़त के साथ 48,500 रुपए से अधिक प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $88 प्रति बैरल से ऊपर आई। And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market